Hello and good morning everyone. My name is Natasha Pujari and I am delighted to welcome our Principal Sir, Dr. Shindara Shetty, our Vice Principal Ma'am, Dr. Liji Santosh, and our Vice Principal Sir, Sardesha Shetty, our POs, Dr. Vijay Vishwakarma Sir and Professor John Medici Sir, and our resource person for today's session, Mr. Sanjay Chavan and Mr. Suresh Bhoi. I would also like to acknowledge the presence of the participants who have joined us. Now, I would like to call upon our Principal Sir to address the gang. Good morning to all of you. This program happens to be the first program of this academic year. In a year, we conduct more than 100-200 programs. Last year, I think the total programs we have conducted amounted to 361 programs, taking the students beyond the classrooms, contemporary issues and all that. As far as NSS is concerned, our program officers, students are doing extremely well. So many programs and all that. Today we have with us Mr. Sanjay Chavan and Mr. Suresh Bhoi. They are from the Narcotics Department. And in this regard, actually, college students should have proper kind of information and awareness. Just now we are talking in my cabin. Powai is a posh area according to your terminology. In the sense that middle class people, upper middle class people, rich people live here. Students, your age between 16 to 24 is very important, is very fertile for investment in academics. Barabar hai? Yes. 16 to 24. And you can invest heavily on academics during this. Then afterwards, I think you can smile, you can enjoy because of this investment. But during this period, your friends or your neighbors or relatives, if they go for some unethical, what's called as using the drugs and all those things, I think it is very difficult to come back. You are losing the interest in academics. Health-wise also you are losing. And more than that, biggest tension to your parents. And they cannot engage in their work. Rather, they are thinking 24 hours about the daughter and about the son. I am not exaggerating it because parents are coming and meeting us because they cannot stop it. One thing. Secondly, this area is very subtle, sukshma, because we cannot take a hard decision also on the students. We have to counsel. Sometimes we have to send them to the rehabilitation. And more than that, dear students, you are responsible to create this awareness and spread the awareness. That student is losing the social status also. Yes or no? Yes, sir. Social status also. He or she cannot show the face to the classmates.
You should be away from the classmates. And if the relatives also come to know that boy or the girl cannot attend even the social functions also. From a distance, the relatives are pointing that boy, see that boy, that girl, addicted to drugs and all those things. Today we have the guest today, and they have a lot of experience. They are dealing such things. So they are going to speak and share their experiences. They are also going to share a few case studies also with you. And I think each one of you take this aware for the next 10 students. I think this program is quite meaningful. I take this opportunity to welcome our Vice Principals, Dr. Liji Santosh and Professor Sanjay Shetty. Our Program Officers, Dr. Vijay Vishwakarma and Professor John, and our distinguished guests today, who have come all the way to our college to address the students. Thank you so much. I am really happy to extend a cordial welcome to all of you. Thank you so much. Thank you so much, sir. It gives me great privilege to introduce our resource person for the day, Mr. Sanjay Chavan and Mr. Suresh Boy. Mr. Sanjay Chavan is a police inspector at INT Narcotics Cell, Crime Branch, Mumbai. Mr. Suresh Boy is an assistant sub-inspector. Welcome, sir. We are honored to have you with us. I would like to request our principal, sir, Dr. Sridhar Shetty, sir, to felicitate our resource person. Mr. Suresh Boy, sir. NSS clap goes. Mr. Shrikant Karkar, sir. NSS clap goes. I would like to request our resource person to take over the session. Yes.
नमस्कार। सब लोग एनएसएस के हैं क्या? एनएसएस मेरा नाम है सुरेश गोयल। हम लोग एंटी नार्कोटिक्स सेल क्राइम ब्रांच मुंबई से। हमारे सर है संजय चौहान सर, पुलिस इंस्पेक्टर, और ये मेरे कलीग श्रीकांत काकर, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर। हम लोग प्रोफेशनली लेक्चरर तो नहीं है, लेकिन जो आपको बता रहे, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हिसाब से आपको बता रहे। एनडीपीएस मतलब क्या है? एनडीपीएस का लॉन्ग फॉर्म क्या है? नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स। इसमें दो प्रकार है। नार्कोटिक ड्रग्स, उसमें क्या आता है आपके सामने है, इंग्लिश में आपके सामने है। इसमें जो कोका होता है, कोका लीफ, भांग, अफू और चरस, खसखस, वो आते हैं। और साइकोट्रोपिक ड्रग में क्या आता है? सबसे में जो केमिकल है, वो केमिकल का यूज करके जो तैयार किया जाते हैं ड्रग, वो ड्रग होता है साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। उसमें आता है हेरोइन, एलएसडी, कोकेन, एम्फेटामाइंस, एमडी, और ज्यादातर आपको मालूम है। स्टैटिस्टिक अगर देखा जाए तो 1 मिलियन हेरोइन यूजर्स register in India according to UN report, but unofficial estimates suggest 5 million is a true figure. इससे भी ज्यादा फिगर हो सकती है। अगर देखा जाए तो मुंबई जैसे शहरों में इससे भी ज्यादा फिगर हो सकती है। नेशनल सर्वे के अनुसार इंडिया में 2019 में 2.1% पॉपुलेशन use opiates which include opium. The national survey of 2019 also showed that about 2.8% of Indians aged 10 to 75 years were using cannabis. जे आपला गांजा वगैरे जो असतो, गांजा बघा, सर्रास गांजाची पुडी साडीमध्ये किंवा कुठेही सर्रास विकली जाते। आणि गांजाचे जे युजर्स आहेत सगळ्यात जास्त आहे, जर आपण बघितलं गांजाचे सेवन करणारे किंवा गांजाचं कंझ्युम करणारे, गांजा सरस आणि भांग कंझ्युम करणारे सगळ्यात जास्त युजर्स आहेत। सुसाईड बघा, 2010 सर्वेनुसार 3,343 cases of suicide were reported, and the number increased to 7,860 suicide in 2019. हे कशामुळे झाले? तर हे ड्रग घेणाऱ्यांच्या प्रमाणात वाढ झाली। वाढ झाली म्हणजे नेमकं काय? एकदा त्याची सवय झाली की जर ते तुम्हाला मिळालं नाही तर तुम्ही वाजवलं काय? आता बघा, तुम्ही बघत असाल आजूबाजूचे एखादा ड्रग पिणारा किंवा ड्रग सेवन करणारा कोणी बघितलं असेल तर त्यांना जर ड्रग मिळाला नाही, त्या हातावर मारून घेतात, बरोबर ना? बऱ्याच लोकांनी बघितलं असेल हातावर
हे एक उदाहरण दिलंय बघा, डेट रेट ड्रग्स. तुम्ही वाच तर तुम्ही एक लक्षात घेतलं पाहिजे की आपण जेव्हा कुठे जातो तेव्हा आपलं ड्रिंक्स म्हणा किंवा आपलं पेय म्हणा तुम्ही स्वतः घेतलं पाहिजे. आणि तुमच्यासोबत जे कोणी आहे त्याच्यावर तुम्ही विश्वास नाही ठेवला पाहिजे. जे तुम्हाला ते ड्रग्स मधून किंवा ड्रिंक्स मधून काही देऊ शकतात. म्हणजे तो तुमचा मित्र पण असू शकतो किंवा मैत्रीण पण असू शकते. म्हणजे असं नाही की सेक्शुअल असा फक्त लेडीच्या बाबतीत होतो असं नाही, तर ते कुणाच्या बाबतीत होऊ शकतं. त्याला पार्टी ड्रग्स असे म्हणतात, क्लब ड्रग्स म्हणतात. इफेक्ट ऑफ ड्रग्स on health and behavior. बघा, तुम्ही जर ड्रग्सचं नेहमी सेवन करत असाल तर तुमच्या आरोग्यावर आणि वर्तनात काय परिणाम होतात. तुमची जी मेंदूची संपर्क प्रणाली आहे, नर्वस सिस्टम, त्याच्यावर परिणाम होतो. तुमचं मानसिक संतुलन बिघडतं, फुफ्फुसाचे आजार होतात, मेमरी लॉस, लक्ष न लागणे किंवा निर्णय क्षमता हरवणे, ज्यामुळे रोजचं जगणं तुम्हाला कठीण होऊन जात आहे. ड्रग्सच्या वापरामुळे तुम्हाला एन्झायटी येऊ शकते, डिप्रेशन येऊ शकतो किंवा तुमची मनोवृत्ती बिघडत जाते, वाढत जाते. तुम्ही काय करायला पाहिजे. लोक ड्रग्स का घेतात. कोणी म्हणतंय मला एन्झायटी आहे, मला डिप्रेशन आहे म्हणून मी ड्रग्स घेतो. मग तुम्ही काय करायला पाहिजे. तुम्ही तुमच्या स्वतःवर विश्वास ठेवायला पाहिजे. हार न मानता तुम्ही तुमच्या स्वतःवर विश्वास ठेवायला पाहिजे. टेक ऑन युअर चॅलेंजेस, dig deep within yourself to conquer fear. Never let anyone bring you down. Follow your dreams. India has the largest youth population in the world, around 66% of the total population. Give importance to the value. Stick to your goal. There is no shortcut to success. Hard work is the key. यशाचा कोणताही शॉर्टकट नाही. Prone to get demotivated these days due to mental pressure relating to society, academic and personal issues. ड्रग्सचा टेररिझमशी काय संबंध असू शकतो हे तुम्हाला बघा. ड्रग प्रोडक्शन impacting Indian oceans that take place in two main regions, Golden Crescent, इराण, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यातून आपलं सगळ्यात जास्त उत्पादन होतं. त्याचप्रमाणे गोल्डन ट्रायंगल म्हणजे म्यानमार, थायलंड आणि लाओस यातून दुसऱ्या सगळ्यात जास्त प्रमाणात आपलं उत्पादन होतं. नार्कोटिक्स मध्ये एनडीपीएस मध्ये बघा, एनडीपीएस हा अतिशय कडक कायदा आहे. यामध्ये कमीत कमी 10 वर्ष आणि जास्तीत जास्त 20 वर्षापर्यंत शिक्षा सांगितली आहे आणि 1 लाखापासून 2 लाखापर्यंत दंड आहे. याच्यामध्ये स्मॉल क्वांटिटी आणि कमर्शियल क्वांटिटी असे 2 प्रकारचे असतात. स्मॉल क्वांटिटी म्हणजे काय, त्यामध्ये तो बेलेबल असतो आणि कमर्शियल क्वांटिटी मध्ये नॉन बेलेबल असतो. याच्यामध्ये नॉन बेलेबल मध्ये तुम्हाला बेल होण्याचे चान्सेस खूप कमी असतात. थोडक्यात
नार्कोटिक्स मध्ये पनिशमेंट कशाला असते, तर तुमच्याकडे जर पोझिशन असेल किंवा तुम्ही परचेस करत असाल किंवा तुम्ही सेल करत असाल, ट्रान्सपोर्ट करत असाल, कंजम्पशन करत असाल किंवा तुम्ही तुमची इन्व्हॉल्वमेंट असेल तर तुम्हाला नार्कोटिक्स मध्ये पनिशमेंट दिलेली आहे. फक्त याच्यात एक्झम्पशन असं आहे की तुम्ही मेडिकल यूज साठी जरी कंजम्पशन करत असाल तर तुम्हाला एक्झम्पशन दिलंय, अन्यथा त्याच्यामध्ये तुम्हाला मोठ्यात मोठ्या प्रमाणात शिक्षा दिलेली आहे. थोडक्यात सांगायचं तात्पर्य असं की तुमचं वय हेच आहे की तुम्ही जेव्हा कॉलेजला असता किंवा मित्र असतात किंवा तुमचं कोणीतरी जवळचा असतो, तुम्हाला सांगतोय की चल एकदा ट्राय करूया, त्याने काय होत नाही, आणि तुम्ही एकदा ट्राय करायला जाता आणि त्याची तुम्हाला लत लागून जाते, सवय लागून जाते आणि तुम्ही नंतर स्वतःहून ते कंझ्युम करायला लागता. जर तुम्हाला मिळालं नाही तुम्ही तर वायबल होता आणि नंतर तुम्हाला त्याची लत लागते आणि मग सुसाईड पर्यंत किंवा एन्झायटी, स्ट्रेस किंवा हे सगळ्या गोष्टी होत असतात. तर याच्यापासून तुम्ही काय तुम्ही लांब राहिले पाहिजे अशी आम्हाला वाटते. धन्यवाद. कारकर साहेब तुम्हाला थोडक्यात तुम्हाला काय ते एखादी केस स्टडी सांगतील. नमस्कार, मेरा नाम विकास कारकर है. हम सब एंटी नार्कोटिक सेल मुंबई क्राइम से हैं. एक्चुअली हमारा काम है कि जो लोग ड्रग रिलेटेड है, ड्रग रिलेटेड मतलब जो प्रोडक्शन करते हैं, जो कैरी करते हैं, जो सेल करते हैं, जो बेचते हैं, जो खाते हैं, वो सबको पकड़ना और उनको पनिशमेंट देना है, उनके ऊपर केस दाखिल करना. तो हमारा ये रोज का काम है. हम रोज यही काम करते हैं और ये काम करते करते हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस आते हैं. पहले लोगों को लगता था कि ये ड्रग्स का जो है वो सब स्लम एरिया में चलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. अभी हाई एजुकेटेड सोसाइटी में भी ये ड्रग्स का सेवन करते हैं, कंज्यूम करते हैं या उसका बिजनेस भी करते हैं. और ड्रग्स में कैसा है कि इजी मनी है, मतलब आपको कम समय में ज्यादा पैसा मिल सकता है. इसलिए बहुत सारे लोग अभी ये बिजनेस में आए, एक बिजनेस की तरह ही चलाते हैं. इसमें बहुत सारे ड्रग्स के टाइप्स है. आपने सुना भी होगा, कोकेन आपको मालूम होगा, गांजा आपको मालूम होगा. अभी नया एमडी करके आया, एमडी मतलब मेफेड्रोन, सिंथेटिक ड्रग है. इसमें कुछ ड्रग ऐसे हैं कि जो नेचुरल रिसोर्स से बनाए जाते हैं, कुछ ड्रग ऐसे हैं कि वो केमिकली बनाए जाते हैं. कोई भी ड्रग है वो अपने हेल्थ के लिए हानिकारक ही है, और आपको एक बार वो ड्रग की आदत लग गई तो वो छूटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको आप पर नियंत्रण नहीं रहता है ये ड्रग लेने के बाद. और वो ड्रग अगर आपको नहीं मिलता है तो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं. हमने बहुत सारे केस ऐसे भी देखे कि ड्रग नहीं मिलती है तो वो पैसा नहीं देते घर वाले या कोई है, जो उसको मारपीट करते हैं, मर्डर भी करते हैं, पेरेंट्स के, उसके फैमिली मेंबर, दोस्त, किसी से भी. तो ये सब से आपको बचना है तो आपको ये ड्रग्स के रास्ते में कभी नहीं जाना है. हमने ऐसे कुछ स्टडी किए, मतलब हमने जो केसेस किए हैं उसमें हमको ऐसे भी लोग मिले हैं जो अच्छे घर से है, लेकिन उनको ये ड्रग्स का आदत लग गया और वो सब उनका फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है. इसमें हाई एजुकेटेड लोग भी रहते हैं, हाई क्लास भी लोग रहते हैं, स्लम एरिया में भी लोग रहते हैं, सब इसमें शामिल है. हमने एक केस किया था, एक आईआरएस ऑफिसर का लड़का था जो गुजरात से था, और वो यहाँ के स्टडी के लिए आया था. अच्छे वो आईटी स्टूडेंट था. उसको अपने दोस्तों से कैसे पता चला मालूम नहीं, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ड्रग्स बिजनेस के लिए सोशल मीडिया का बहुत सारा यूज होता है. सोशल मीडिया के थ्रू वो जल्दी आपसे आपके नजदीक आ गए. मतलब आप कोई भी अपना मोबाइल में देखो या ग्रुप में एक हाथ कोई ड्रग्स लेने वाला रहेगा तो वो सबको वो आदत डाल सकता है या आपको इन्वॉल्व कर सकता है.
ड्रग्स खाने के बाद या लेने के बाद आपको आपके ऊपर कुछ भी नियंत्रण नहीं रहते, आप क्या कर रहे हैं, आप अलग दुनिया में क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं होता है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है सही हो रहा है ये भी आपको पता नहीं होता है। ऐसे एक स्टूडेंट वो गुजरात से आया था स्टडी के लिए, तो उसको गांजा के दो प्रकार है, जो इंडियन गांजा रहता है वो अपने यहाँ पे मिलता है, दूसरा एक हाइड्रो गांजा बोलते हैं, हाइड्रोवीड बोलते हैं, वो यहाँ नहीं मिलता है, वो आउट ऑफ कंट्री से आता है, अमेरिका से आता है। तो उसने ये सब स्टडी किया कि ये कैसे ला सकते, कैसे इसका बिजनेस कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, बांद्रा में अपना रहने के लिए एक अलग सा घर था और ये बिजनेस के लिए एक अलग सा रेंट पे एक घर लिया था। वो एड्रेस पे वो अमेरिका, वो क्या होता है अमेरिका में जो लॉ है उसके हिसाब से वहां पे उसको अलाउड है, कुछ ड्रग्स ऐसे है कि वहां पे अलाउड है लेकिन इंडिया में वो अलाउड नहीं है, तो वहां पे वो इजीली मिल जाते हैं। तो ये ऑनलाइन ऑर्डर करता था, वीकर या फिर डार्क नेट है इसका यूज करके वो ऑनलाइन ऑर्डर करता था, और कोई भी ऑर्डर हम करते हैं तो उसका एक ट्रैक आईडी मिलता है, तो ट्रैक आईडी थ्रू वो समझ लेता था कि अभी तक अपना पार्सल कहाँ पे आया है, कहाँ तक पहुंचा है, इंडिया में आया है तो दिल्ली में आया है, मुंबई में आया है, कब आया है, तो वो सब ऑनलाइन उसको पता चलता था। उसको अपने आइडेंटिटी किसी को दिखाना नहीं था, तो इसलिए उसने 2 आदमी को रखा था काम के लिए, जो पार्सल वहां से लेके खुद तक लाए और फिर आगे का वो जो भी है बिजनेस करे। तो वो पार्सल आता था पोस्ट ऑफिस में, तो ये वो ट्रैकर आईडी पे समझ जाता था कि वो पार्सल आज के दिन वहां पे आया है, पोस्ट पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस में आया है। तो ये 2 लोग उसने जो रखे थे वो वहां पे जाते थे और वो पार्सल वहीं से लेते थे। इसका ये जरूरी था कि वो कोई भी पोस्टमैन या कोई भी इंसान अपने घर तक ना आ जाए और मेरी आइडेंटिटी या मेरा एड्रेस उसको पता न चले, इसलिए वो 2 आदमी पहले ही वो आने से पहले वहां जाके वो पार्सल लेता था, और वो पार्सल लेके वो जो घर उसने बिजनेस के लिए लिया था वहां पे लगता था, वहां पे वो पार्सल डिस्ट्रीब्यूट करता था, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका वेट करके वो उसका पैकिंग करता था। वो हाइड्रोवीड का वैल्यू, 1 आउंस का वैल्यू रहता है 60,000 to 70,000 रुपीज। 1 आउंस मतलब 28 ग्राम, उसका वैल्यू है 60,000 to 70,000 रुपीज। तो जिसको जितना रिक्वायरमेंट है वैसे वो पैकिंग करता था। वो खुद कहाँ पे देने के लिए नहीं जाता था, वो वापिस वो पैकिंग करके वो 2 लोगों को पास देता था, जिनको रिक्वायरमेंट था उनका एड्रेस आता था, उनको पोस्ट कर देता था, हो गए। तो किसी को सामने नहीं आता था, किसी को समझ में नहीं आता था कहाँ से बिजनेस हो रहा है, ये सब ऑनलाइन थ्रू चलता था। लेकिन हमारे कुछ इन्फॉर्मर को उसका जानकारी मिली, वो हिसाब से हमने सब ट्रैप लगाया और उनको पकड़ा। तो मतलब आपको ये बताने की ये कि क्योंकि आप समझेंगे कि ये स्लम एरिया है, अनएजुकेटेड लोग यही लोग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे घर से अच्छे, मतलब जिनको पैसे की भी जरूरत नहीं है, कुछ लोग पैसे के लिए भी करते हैं, लेकिन किसी को पैसे की भी जरूरत नहीं होती है, घर में सब होता है, फिर भी एक एडिक्ट हो जाते हैं, इसलिए वो सब ये धंधा ये बिजनेस करते हैं। तो आप ये सब चीजों से बचो। अभी इसमें क्या है कि ये कहीं से भी आपको लत लग सकती है या आपको इसमें शामिल कर सकता है। जैसे आपके फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल में 1-2 लोग रहते हैं कि जो ये ड्रग्स का, ये आपको भी पता नहीं चलेगा कि ये ड्रग्स उसने किया मतलब लिया है या एडिक्ट हुआ है नहीं, लेकिन वो कुछ अलग ही दुनिया में रहता है। तो आपको भी वो, कभी आप टेंशन में रहते हैं, कभी आप डिप्रेशन में रहते हैं, तो इसी टाइम पे आपको वो चीज में ये करेगा कि या तू ये इस्तेमाल कर, ये ट्राई कर, देख तू अच्छा तेरे को फील होगा, तो ये सब टेंशन से दूर हो जाएगा। अगर वो टाइम पे अगर आपने वो थोड़ा भी ड्रग लिया तो समझो कि आपको गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। और ड्रग्स इतने महंगे हैं, मतलब कुछ ड्रग ऐसे रहता है, मेफेड्रोन है, 1 ग्राम का उसका वैल्यू रहता है 2,000, 2,500, 3,000। कोकेन का रहता है 1 ग्राम का वैल्यू 5,000, 6,000। और इसमें ऐसा नहीं कि आप मतलब बहुत सारा ड्रग मिलेगा तभी आपके ऊपर केस होगा, या आपके पास 1 ग्राम 2 ग्राम रहेगा तो केस नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप लेते हैं, खाते हैं, कैरी करते हैं,
इसमें 1-1 ग्राम पे केस हो जाता है। कुछ ऐसे ड्रग्स है कि पॉइंट में भी उसका वैल्यू रहेगा तो भी उसके ऊपर केस बनता है। अभी लास्ट ईयर में हमने एक ऐसे स्टूडेंट को अरेस्ट किया जो BHMS से पढ़ता था, लास्ट ईयर में था, लेकिन उसको भी ये आदत लग गई। वो भी लीगर ऐप थ्रू वो महंगा ये LSD पेपर बोलते हैं इसको, इतना ही रहता है वो, उसका वैल्यू 2000 से 4000 तक रहता है। वो सिर्फ मुंह में डालते हैं तो उसका नशा आ जाता है। वो भी आउट ऑफ कंट्री से मंगाता था लीगर ऐप के थ्रू, और उसका पेमेंट वो बिटकॉइन से थ्रू करता था। मतलब आजकल सोशल मीडिया का अच्छा भी इस्तेमाल होता है और गलत भी होता है, तो हिसाब से उसने किया था। अभी तक वो जेल में है, 1 साल होके गया, उसका पूरा करियर खराब हो गया, हाईकोर्ट तक गया, अभी तक बेल हुआ नहीं उसको। तो आप ये समझ लो कि ड्रग्स एक बहुत बुरी चीज है। अगर आप जाते हो वहां पे तो आपको कभी ना कभी उसका पनिशमेंट 100% मिलेगा। अभी हमारे हर पुलिस स्टेशन में, हर क्राइम यूनिट में, हर एक ब्रांच में ये नार्कोटिक्स का सेवन करने वाले, बेचने वाले सभी को हम ढूंढते हैं और उनके ऊपर केसेस बनाते हैं। और ये दिन ब दिन हमारे केसेस का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है। तो ऐसा कुछ समझो मत कि हम लेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, हम चुपके से लेंगे हम पर, क्योंकि ये क्या होता है कि कोई पार्टी अपना हाउस पार्टी रहता है, या कोई बच्चों का अपना स्टूडेंट का फ्रेंड का कुछ अलग सी जगह रहती है, वहां जाके उनको लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, घर वालों को नहीं पता चलेगा, लेकिन हमारी नजर आपके ऊपर हमेशा रहेगी। कोई भी गलत काम करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी। तो ये दिमाग से निकालो कि हम कुछ करें और किसी को पता ना चले। आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे सीनियर सर चौहान साहब 2 मिनट आपसे बात करेंगे, फिर आपको जो भी क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। थैंक यू। मराठीतून बोललं चालेल ना? मी इन्स्पेक्टर संजय चव्हाण. 2008 मध्ये मला सिलेक्शन झालेलं आहे. PSI म्हणून सिलेक्शन झालं होतं. त्यानंतर मी मुंबईमध्ये जवळपास 5-6 वर्ष त्यावेळेस काम केलं. त्यानंतर गडचिरोली आणि पुणे सिटी आणि परत प्रमोशनवर मुंबईला आलो. तुम्हाला काय मी जास्त आता जवळपास जे काही ड्रेस संदर्भात जी काही माहिती आहे ती तर तुम्हाला सांगितलेलीच आहे. त्याच्यामुळे मी काय तुम्हाला जास्त त्याच्यामध्ये माहिती सांगणार नाही. मी थोडक्यात सांगणार आहे. आपण एखादा दिवस ज्या दिवशी ठरवत असतो त्या दिवसाचं काहीतरी विशेष असं महत्व असतं. 26 जून हा दिवसच का निवडण्यात आला याबद्दल मी थोडक्यात सांगतो. 26 जून 1987 पूर्वी अमेरिकन कंट्रीज ज्या काही आहेत, मेक्सिको, ब्राझील, अमेरिका, कॅनडा, अशा बऱ्याचशा कंट्रीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात ड्रग्सचं प्रमाण इतकं भयंकर वाढलेलं होतं. जवळपास 40 ते 45% पॉप्युलेशन ते ड्रग्सच्या आहारी गेलेले होते. त्यावेळेस युनोमध्ये अशी चर्चा करण्यात आलेली की काहीतरी याच्या विरोधामध्ये आपल्याला करायला पाहिजे जागतिक स्तरावर. त्यामुळे त्यांनी 1987 साली 26 जून हा दिवस जागतिक ड्रग्स विरोधी दिवस साजरा करायचा असं त्या ठिकाणी ठरलेलं आहे. आता ड्रग्स साठी जे काही 10 कंट्रीज आहेत एकदम भ्रष्ट कंट्री जिथे की ड्रग्स खूप मोठ्या प्रमाणात जातात, त्याच्यामध्ये इराण हा 1 नंबरवर देश आहे. त्या ठिकाणी जवळपास 25% पॉप्युलेशन हेरोईनच्या आहारी गेलेली आहे. हेरोईन नावाचा एक ड्रग्स आहे. ड्रग्सचे जास्त प्रकार आपल्याकडे मुंबईमध्ये आणि महाराष्ट्र आणि भारतामध्ये 5-6 प्रकार खूप मोठ्या प्रमाणात चालतात. हेरोईन आहे, गांजा आहे, चरस, कोकेन, LSD पेपर्स, असे जास्त MDMA एक प्रकार आहे जे पार्टी ड्रग्स त्याला म्हटलं जातं. तर नवीन मुलावर त्याचा एक प्रभाव असतो. कशामुळे घेतलं जातं? फ्रस्ट्रेशन सगळ्यात महत्वाची गोष्ट. मित्राचं फ्रस्ट्रेशन, मैत्रिणीचं फ्रस्ट्रेशन, अफेअर मध्ये फ्रस्ट्रेशन, सिलेक्शन झालं नाही म्हणून फ्रस्ट्रेशन, वेगवेगळ्या फ्रस्ट्रेशन मध्ये ते घेतलं जातं. किंवा एखादा ऍक्टर कोणीतरी घेतो आणि त्याचं आपण अनुकरण करतो. बऱ्याचशा मुलांना पण ते जिम वगैरे जाऊन असं दिसत नाही कोणी असं एकदम बल्की वगैरे, अचानक असा पातळ मुलगा असतो आणि तो काहीतरी ते इंजेक्शन घेतो आणि काहीतरी प्रोटीन्स वगैरे घेतो आणि तो एकदम बल्की होतो. तर ते एकदम चुकीचं आहे. बरेचसे अवयव त्याच्यामध्ये मरून जातात, म्हणजे हार्ट अटॅक न म्हणा, लिव्हर किंवा किडनी फेल्युअर वगैरे अशा प्रकार होतात. त्यामुळे कोणतीही गोष्ट नॅचरल पद्धतीने करा, ड्रग्स वगैरे घ्यायचंच नाही
आता याच्यामध्ये आमचा रोल काय आहे तर मुंबईमधले जे काही पेंटर्स आहेत, जे विक्रेता आहेत, येणारा विक्रेता यांच्यावर नियंत्रण ठेवणं हे आमचं काम आहे. आता विद्यार्थ्यांना हे मार्गदर्शन काय करतो की मोठ्या प्रमाणात नवीन तरुणामध्ये याचा खूप मोठ्या प्रमाण वाढलेला आहे. तुमच्यासारख्या सजग विद्यार्थ्यांनी पोलिसांना मदत करायला पाहिजे की या ठिकाणी ड्रग्स विकलं जातं किंवा या ठिकाणी ड्रग्स घेतलं जातं, तर तुमच्यापैकी एखादा तुमचा मित्र असेल ड्रग्स मध्ये, तर त्याला आपण त्याच्यातून बाहेर कसं काढता येईल, तर त्यासाठी बरेचसे सेंटर्स पण आहेत. आता आम्ही गेल्या वर्षी फॅक्टरी पकडली होती ड्रग्सची, एमडी जी आहे, एमडीची फॅक्टरी पकडलेली होती. एक ऍडव्होकेट, हायकोर्टचा खूप मोठा ऍडव्होकेट, तो ती फॅक्टरी चालवायचा. त्याची एक टेक्निक चांगली होती. त्याचं कोल्हापूरच्या बॉर्डरला एक गाव होतं, त्या गावामध्ये त्यांनी ती फॅक्टरी तयार केलेली होती. संबंधित गावकऱ्यांच्या किंवा आजूबाजूच्या लोकांना संशय येऊ नये त्यामुळे त्यांनी कुक्कुटपालन जो असतो आपला कोंबडीचं, ब्रॉयलर कोंबडीचं, त्याचं एक पोल्ट्री फार्म टाकलेलं होतं की त्याचा स्मेल जर खूप मोठा स्मेल येतो एमडीचा. तर तशा पद्धतीने आम्ही दोन ड्रग्स पेडलरला आणि त्यांना पकडलं. त्या चौकशीतून मग त्याची मुळे त्या हायकोर्टच्या वकिलापर्यंत गेलेली आहे. आता तो जेलमध्ये आहे, त्याला बेल मिळणार नाही, त्याला 10 ते 20 वर्ष शिक्षा होईल. मी काही जास्त लेक्चर देत नाही, तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर ते विचारा. एक 5 मिनिटाचं आपलं सेक्शन आहे. आम्ही एकतर लेट आलोय. पोलिसांना भाषण वगैरे द्यायला खूप अवघड जातं, म्हणजे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आमची भाषा एकदम कशी असते हे तुम्हाला माहित असेल. एवढं सभ्यपणे बोलायची सवय फार कमी आहे. मी तर कंटिन्यू क्राईमला आणि डिटेक्शनलाच काम केलेलं आहे. त्याच्यामुळे भीती वाटते की आपल्या तोंडातून एखादा शब्द वाईट पडेल विद्यार्थ्यावर आणि त्याचा काहीतरी वेगळाच परिणाम होईल. ठीक आहे, काही प्रश्न असतील तर विचारा. Any kind of a question, या आपको कुछ ऐसा query है something? एक है कि ज्यादातर बॉडी बिल्डर भी ये गांजा लेते हैं फ्रेंड्स के लिए या किसी और चीज के लिए. आता हिंदीमधून सांगतो, मराठीतून बोलतो. गांजा ड्रग्स जे आहे, ड्रग्सचे काही फायदे सुद्धा आहेत. 5% आपल्या ज्या गोळ्या वगैरे आपण घेतो, ड्रग्सचे काही फायदे आहेत. जे आजारी आहेत, टीबी पेशंट्स आहेत, किंवा त्यामुळे त्यांना कधी कधी ते गांजा घेतलं तर थोडंसं जेवण वगैरे करतात, म्हणजे त्याची तब्येतीसाठी चांगला असतो. पण ते बॉडी बिल्डर वगैरे हे जास्त म्हणजे त्यांना व्यसन लागून जातं. एक प्रकार असतो व्यसन, बॉडी बनवण्यासाठी काहीतरी वेगळ्या पद्धतीने ड्रग्स घेणं. मग त्याची जर मस्तिष्क जे आहे आपल्याला, मग त्याच्यावरचा आपला कंट्रोल सुटतो आणि त्याची त्याला लत लागते आणि ती लत अत्यंत वाईट असते. तुमचा जर प्ले बघितला मी काय तू भी बढिया मैं भी बढिया बातें कर ले, संजू पिक्चर मधला जो काय आहे त्याला ते समजत नाही. संजू पिक्चर आपल्याला बघायला फार छान वाटतो, पण संजय दत्तच्या लाईफ मध्ये ऍक्च्युली त्याच्या वडिलांना किती मोठ्या समस्याला समोर जावं लागलं. पण तो संजय दत्त आणि सुनील दत्त होता म्हणून तो त्याच्यातून बाहेर पडला. आपल्यासारख्या सामान्य मुलांच्या किंवा मध्यमवर्गीयांच्या आई वडिलांना आत्महत्या केल्याशिवाय पर्याय नसतो. त्यामुळे ह्याच्यापासून दूर राहा. और कुछ क्वेरी किसी को? एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट, रिलेटेड टू ड्रग्स ओनली ना. तो शाहरुख खान का लड़का बहुत बड़ा है, कैसा ड्रग्स ले रहा है? हाँ सर बताओ. शाहरुख खान का लड़का है, पैसा भी बाहर निकलता है. लेकिन एक बार ध्यान रखो कि छोटा भी रहे और बड़ा भी रहे, कितना ही बड़ा रहने दो, नहीं तो छोटा रहने दो, उसको पनिशमेंट मिलेगी. लॉ सबके लिए बराबर है. शाहरुख का लड़का होते वो तो 24 दिन अंदर था, आप तो फिर सोचो 24 महीने, कम से कम 2.5 साल तो नहीं छोड़ो. सर आप लोग के हिसाब से, मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, हम दूसरे तरीके से या आप लोग ग्राउंड फील्ड पे वर्क करते हैं तो किस लेवल तक हम कर सकते हैं और क्या आपका स्कोर हो सकता है? आप सब एनएसएस कैडेट्स हो, एनएसएस एनसीसी बोलते आर्मी जैसी बेसिक आर्मी है आप लोग, तो आप लोगों का रहता है ऐसा कुछ करने का है. तो आप जहाँ पे ज्यादा ड्रग्स दिया जाता है, मुंबई में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत से ज्यादा ड्रग्स दिए जाते हैं, झोपड़पट्टियां है या हाई प्रोफाइल एरियाज है. अगर आपको लगता है कि कुछ तो करने का है तो आप जैसे ऐसे प्ले करते हो या ऐसे कुछ तो ये करके लोगों को इसमें अवेयरनेस आप बढ़ा सकते हो.
कुछ भी जानकारी मिली इसके रिलेटेड, कोई सेल कर रहा है, कोई कंज्यूम कर रहा है, कोई जगह पे पर्टिकुलर। हेल्पलाइन भी है अपना, और मुंबई पुलिस का एक 100 नंबर तो आप सबको मालूम है, उस पर भी आप बोल सकते कि यहाँ पे ड्रग्स ये कर रहा है। नहीं तो आपका काम छोड़ के सिर्फ वही मत करो, पहले पढ़ाई इंफॉर्मेशन देने काम करो, क्योंकि आगे की प्रोसीजर वो हमारी है। आप उसमें जाओगे तो आपको तकलीफ हो सकती है, तो आप सिर्फ इंफॉर्मेशन मिले किसी भी पुलिस तक पहुंचा दो, आगे का काम हम कर देंगे। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है, क्वेश्चन कम हो गए तो समझ में आया, जाने की जल्दी है। 11 से लेकर अभी 12:30 तक 1.5 घंटा उनका ज्यादा चला गया है। चेहरे पे कुछ लोगों के दिख रहे हैं ऐसे, कोई कुछ मुस्कुरा रहे, कुछ नाराज है, देखो बहुत निराश बैठा है, कोई फर्क यह क्या ठीक है, धन्यवाद। Thank you so much, sir, for this informative seminar. Now, I would like to call Preeti Shetty to give the vote of thanks. Hello everyone, myself Preeti Shetty on behalf of NSS unit of Bansangas SM Shetty College of Science, Commerce and Management Studies extend my heartfelt gratitude and thanks to our resource person of the day who spent time to enlighten this seminar on the occasion of International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. I am glad that all of us got a chance to be a part of such an informative seminar. I would also like to thank our Benevolent Management for supporting us. Our dear NSS Program Officers, Dr. Vijay Vishwakarma sir and John Menzies sir. I would also like to thank the technical team and my teammates who worked behind the scene to make this event successful. And last but not the least, I would like to thank all my dear teachers, non-teaching staff, students and all my dear participants for devoting their time. And I hope you all enjoyed this wonderful seminar. Thank you. Volunteers, एक feedback form भरो, thanks करो और feedback form भरो। Also NSS volunteers, तुम लोग को दूसरा एक और form भरना है। अभिजीत